evening to one and all present here. I, Gauri Saxena, along with my co-host Swarnima Gupta, welcome everyone to the valedictory ceremony of Ritika 2023, a convention cum festival of media students. It is our great privilege and honor to have with us two extremely special guests for this ceremony. Please put your hands together for Mr. Avdesh Kumar Mishra, CEO and Director at PCPL, and Mr. Sushil Bharti, Director of Broadcasting, Marva Studios. We welcome Professor Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, and Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, in the valedictory ceremony of Ritika 2023. And my heartiest welcome to all the faculty members, students, and participants gathered here. Before we begin with the ceremony, let us start the program with Saraswati Vandana, that pays tribute to the goddess of wisdom and creativity. Thank you, Esika, for this beautiful performance. Now, we are proud to share that Pritika 2023 is celebrating the 8th year of its existence, this time with the theme Media Maestro. DME Media School, Delhi Metropolitan Education, Noida, affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, hosts Pritika every year, and it is a part of the Media School's annual calendar. This convention cum festival of media students organized every year in the month of October-November has entered its 8th year in 2023. It is a 2 to 3 day long event comprising a variety of competitions, discussions and deliberations. This festival invites participation from colleges across India. Ritika is a convention organized by the students of media school with mentoring and assistance from the teachers. It is a unique concept that allows students to feel a greater degree of responsibility, accountability, and ownership of their work. Students are involved at every step, from planning to execution and beyond. This youthful activity is about giving every student an opportunity to discover their area of interest and excel in that field while contributing to the overall success of the event. Over the years, Ritika had an exciting journey. It started as a film festival in 2016 and converted to a media festival in 2018. And in 2022, Ritika turned to a convention of media students with the idea of bringing them together
from all over the country to one platform. In 2022, it converged as a convention cum festival of media students, and now we are here. Our media partners for this year are V-Hit, Quick News, Nishpaksh Pratidin, News 44, Amar Bharti, Hunt News, and Dainik Khabar Live. The sponsors of Ritika 2023 are title sponsor Pioneer Packaging, co-powered by Pearl of Korea. Now I respectfully call upon Professor Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, and Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to felicitate the guests. So welcome everybody to the valedictory of Vritika 2023. So step by step we have reached at this step. We started long back and now it's the 8th year and it's concluding. So obviously now after this valedictory is over, we have to wait for the 9th edition, that is Vritika 2024. And the kind of excitement which is always there in Vritika, because this is a festival which is a combination of so many things. Not only the competitive activities take place as it happens in all kind of festivals in whichever college it's being organized, but since this is organized by DME Media School, and when we say media, then a lot of things come automatically in. Like when we say media, the whole profession is all about writing, all about speaking, all about expressing yourself. So we try to devise such kind of competitive activities wherein all these traits are tested, because ultimately the media student, when they are going out, whichever medium they are working, right print, television, digital, all these traits have to be there. And also we always try to include certain such workshops which can train the students for the future. Like this year, we had a workshop on PR functions and professional PR writing, and we invited an expert from Kolkata. So that is how, when it was happening in the online mode, we were having all news reading workshops or RJ workshops, and we were having experts from different parts of the country. And in 2021, we even organized an RJ workshop, which was taken by an RJ based in California. So these kind of experiments we have been doing, which is more professional in nature, which is more academic in nature. So media is a profession which is based on learning by doing. You do the thing, and that is how you learn, you deliver, and then you serve the society. So that's the basic objective behind this festival. And obviously the festivity part is always there. So all those things are inseparable in Vritika Media Fest, and I give all my best wishes to all the participants and all those who have achieved some or the other prize in different competitive activities. I also welcome our eminent guest in the valedictory function, Dr. Sushil Bharti, who is a veteran filmmaker, and now he is not only making the films but also making others facilitate to make the films. He is a director broadcasting in Marwah studio, wherein he is looking after the channel, the television channel, and also the radio channel. So such kind of personalities are here today with us. Then we have Mr. Avdesh Mishra, who is also a very prominent anchor, and he's working with ABP News, and many of you would have seen him presenting the program. So I also welcome him, and I hope that with such personalities around, we all will be benefited, we all will be blessed. Thank you. Thank you so much, sir, for your kind words.
Now, I would like to take a moment and introduce our special guest, Mr. Avdesh Kumar Mishra, who started his career in journalism with Doordarshan in 2009 as a post of production assistant. From January 2010, Mr. Avdesh entered mainstream news media as a reporter in Sadhana News and started reaching new heights in his career. He worked on every genre during his 7 years in Z News Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Z News Uttar Pradesh, Uttarakhand. He has been working as an anchor in ABP Network for about 3.5 years. We are honored to have you, sir, today with us. I would request you, sir, to please come on the stage and address the gathering. Over to you, sir. गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। और देखिए, जो एंकर होता है ना, नमस्कार से स्वागत करता है, तो नमस्कार आदत में है। और दूसरी बात कि अभी मैं देख रहा था डीएमई के बारे में, जब पढ़ रहा था मैं आने से पहले, तो असल में जो चीज़ मुझे लगता है मीडिया में 13 साल में रह के कि एक कॉम्बिनेशन छात्रों को मिलना चाहिए कि वो मीडिया में है तो उन्हें संविधान की जानकारी ज़रूरी है, कानून की जानकारी ज़रूरी है, और अगर कोई बड़ा इवेंट है तो वो मैनेज कैसे करें, क्योंकि एक रिपोर्टर अकेला जाता है लेकिन मल्टीपल इवेंट्स को कवर करता है। तो यहाँ पर लॉ की भी पढ़ाई हो रही है, मैनेजमेंट भी है और मीडिया है। तो बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप लोगों को ये मौका मिला है कि तीनों ही चीज़ें आपको बड़ी करीब से मिल रही हैं। रही बात मीडिया फेस्ट की, तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम लोग छात्र जीवन में थे तो हम ऐसा मानते थे कि शायद ये वक्त की बर्बादी हो रही है। अधिकतर छात्र मानते हैं, मेरा भी यही मानना था। लेकिन जब हम मीडिया में आए उसके बाद हमें समझ में आया कि यहाँ जो छोटी छोटी चीज़ हो रही है उसका सीधा इम्पैक्ट आपके करियर पर पड़ता है। जैसा कि अभी विशाल सर से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे और हमें एडिटिंग पढ़ाई गई। अब हमें नहीं समझ में आया 1 साल की एडिटिंग क्यों पढ़ाई जा रही है, हमारे लिए बोझ बन गई थी शायद। लेकिन जब हम पहुँचे, हमने पहला चैनल ज्वाइन किया और थोड़ी सी प्रोडक्शन की जब जानकारी हुई, प्रोडक्शन का काम मिला, तो सबसे पहला पाला हमारा एडिटर से ही पड़ा। और एडिटर से तब आप निपट पाएंगे जब आपको एडिटिंग आती होगी। तो वो चीज़ थी। कैमरा में एक बड़ी रोचक घटना थी, वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। हरिद्वार में कुंभ चल रहा था 2010 में, और कड़ी धूप थी, आखिरी शाही स्नान चल रहा था, अप्रैल का महीना था, और जो हमारे कैमरामैन थे वो गश खा के गिर पड़े। केवल 2 अखाड़े निकले थे और 11 बड़े अखाड़ों का निकलना बाकी था वहाँ पे। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना है। तो मैंने अपने संपादक को फ़ोन किया, मैंने कहा सर अगर आप परमिशन दें तो कैमरा मैं हैंडल कर लूँगा। और उन 11 अखाड़ों की जो एंट्री थी कुंभ क्षेत्र में, वो मैंने रिपोर्टर के तौर पर मैं कैमरामैन बना और वो चीज़ें हुई। तो एक एक चीज़ यहाँ पर बड़ी काम की रहती है अगर आप सीखें। और आप बात करें, देखिए यहाँ पर नुक्कड़ नाटक है, ओपन माइक है, मीडिया डिबेट, मतलब वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है जो आपको भविष्य में कवर करना है। तो इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छे साथी हमें मिलेंगे। बस जाते जाते अपने 14 साल के करियर का अनुभव ये देखे जा रहा हूँ कि संविधान ज़रूर पढ़िए, कानून की जो आईपीसी और सीआरपीसी है वो थोड़ा ज़रूर पढ़िए, करंट जो सब्जेक्ट हैं उन पर निगाहें रखिए, और सबसे महत्वपूर्ण, देश में राष्ट्रवाद की राजनीति चल रही है और विदेशों में युद्ध चल रहे हैं। तो आप थोड़ा राष्ट्रवाद पर अपनी जानकारी को बढ़ाइए और विदेश नीति जो है उस पर फोकस रखिए। तो निश्चित तौर से आज यहाँ पर मुलाकात हो रही है और कल को किसी चैनल में हमारी आपकी ज़रूर मुलाकात होगी। सभी को बहुत शुभकामनाएं, और सर आपको बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। फिर से सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। Thank you so much, sir, for your kind words. Now, I would like to introduce our next guest, Mr. Sushil Bharti. Mr. Sushil Bharti, a prominent figure in media, holds dual master's degree in mass communication and Hindi literature with a remarkable 25-year career. As a television director, he shaped iconic series like Asman, Aur Bhi Hai, and Sare Jahan Se Acha. He's made impactful contribution in cinema for organizations like UNDP and UNICEF. As director of broadcasting at Marwa Studios, he manages Radio Noida 107.4 FM and MSTV. Mr. Bharti's role as festival director for the Global Literacy Festival and the International Documentary Film Festival enriches cultural landscape. He is also a creative author with 6 published books and hosts the podcast Safar Yadon Ka, showcasing his storytelling expertise. I would like to call upon the stage Dr. Sushil Bharti. Over to you, sir.
वृत्तिका फेस्टिवल के इस मौके पर मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर मैं प्रोफेसर अमरीश सक्सेना जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जो उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। सुष्मिता बालाजी, अवधेश कुमार मिश्रा जी और प्यारे बच्चों, आज की एनर्जी देख करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही शानदार ये कार्यक्रम किया है। मुझे लगता है कि अपने लिए एक जोरदार ताली आप लोगों को बजानी चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, बात यह है कि भाग लेने से ही भाग बदलता है। आप अगर भाग लेंगे तभी भाग्य बदलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी समय है मीडिया के लिए वो बहुत ही कठिन है, बहुत ही टफ है। इस समय पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, समझनी है, पता करनी है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस मीडिया क्षेत्र में अपना करियर बनाने जा रहे हैं और आप प्रोफेसर अमरीश सक्सेना जी के हाथों में हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको एक सही दिशा ज़रूर मिलेगी। देखिए, बात यह है कि ये जो मीडिया का जो क्षेत्र है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको किसी भी तरीके से समझ लीजिए। मैंने जब मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़ाई की तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल साहब इनॉग्रल लेक्चर के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि एक मीडिया का जो छात्र है वो 1 लाख के बराबर है। आपके पास जिम्मेदारी है, आप देश के तमाम उन करोड़ों मूक लोगों की आवाज़ है जिनके मुंह में आवाज़ नहीं है। आप आगे बढ़ेंगे, आप उनकी बात को टेलीविज़न के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से आप उनकी बात को रखेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात मैंने गांठ बांधी और मैं मीडिया में कूद पड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीडिया की जो खूबसूरती है वो बहुत ही सुंदर है। अगर मैं मीडिया में नहीं होता तो मैं अपने देश को 3 बार नहीं देखता। ये मीडिया की ही बदौलत थी। ये मीडिया की ही बदौलत थी कि मैंने नेपाल जाते हुए माउंट एवरेस्ट को देखा। बदलती हुई लाइट्स में आप कल्पना कीजिए कि आप प्लेन के ऊपर बैठे हुए हैं, प्लेन में, और आप माउंट एवरेस्ट को देख रहे हैं। शाम का समय है और बदलती हुई लाइट है। किस तरह से कभी वाइट, कभी ऑरेंज, कभी येलो, ये सब नज़ारे जो है वो आप देखते हैं। आप देश के नदी, नाले, पहाड़, जंगल, ज़मीन, लोग, आदिवासी इलाके, आप जब रात में वापस आते हैं फिल्मों को करने के बाद में, तो आपके साथ एक संगीत पीछा करता है जो कि ट्राइबल बेल्ट के अंदर आप पूरे दिन उसके अंदर गुजारते हैं और वो संगीत आपके साथ रहता है और वो आज भी मेरे साथ संगीत बजता है। मुझे लगता है कि जीवन एक बार मिला है, ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको अपनी दिशा ठीक रखनी है। आपको कमिटमेंट के साथ, प्रतिबद्धता के साथ, जैसे ये फेस्ट आपने आयोजित किया है ना, पूरी जी जान लगा करके, मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति के चेहरे पर, हर छात्र के चेहरे पर एक खुशी है। इसी आनंद के साथ आपको मीडिया के अंदर जाना है। इधर मैं देख पा रहा हूँ कि नुक्कड़ नाटक है, ये बहुत बड़ी विधा है। आपको मैं बताऊं कि हमने भी नुक्कड़ नाटक किया था अपने कॉलेज के ज़माने में। सफदर हाशमी और मलेश्री हाशमी, उनकी जो वाइफ, उन्होंने हमें नाटक सिखाया था। महाराष्ट्र के बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट जीपी देशपांडे, उनके बेटे सुधनवा देशपांडे ने मुझे सिखाया था नाटक। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह की विधा मीडिया के अंदर है और मीडिया में जिस तरह का आपका चहुमुखी विकास हो सकता है, ये और किसी क्षेत्र के अंदर नहीं है।
तो अपनी शक्ति को, अपनी ताकत को पहचानना है और कभी भी ये नहीं देखना। अक्सर मुझे लगता है कि मीडिया के अंदर बच्चे जाते हैं और वो कहते हैं कि चैनल के अंदर उनको काम नहीं मिलता, यहाँ काम नहीं मिलता, वहाँ काम नहीं मिलता। आप उन लाइनों को तोड़ दीजिए। आज डिजिटल मीडिया का युग है। आज बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर आप अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अब वो ज़माना चला गया। आप बहुत ही सुंदर एज के अंदर आप मीडिया का कोर्स कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर के। मुझे लगता है कि जो देश का नौजवान है उसके अंदर एक ताकत है, शक्ति है और वो आगे भविष्य में राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब ये वृत्तिका होगा तो इससे भी बड़ा करेंगे आप। और यहाँ पर बहुत सारे, जैसे कि अभी बताया भी गया कि सभी विधाओं में आपने कार्यक्रम किए हैं। काश मैं आपका एक भी प्रोग्राम देख पाता। आज मुझे वैलेडिक्टी के लिए बुलाया गया है बोलने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अंत में एक दुष्यंत कुमार की पंक्ति कहकर के खत्म करता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। थैंक यू। Thank you, sir, for your kind words. And we will invite you surely next time for our events too. And now with this, I would like to call upon Nikhil and Rishita to carry forward with the cultural evening. नमस्कार, स्वागतम, सुस्वागतम, अभिनंदनम, सस्याकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, वेलकम, केम छो, कस्सा काय, जय जिनेंद्र। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं वृत्तिका 2020-23 की कल्चरल इवनिंग में। गाइस, वैसे मेरी को होस्ट कहां रह गई यार? रुक जाओ, मैं कॉल लगाता हूं उसे। हेलो रिशिता, यार कहां पर हो? कल्चर इवनिंग शुरू हो गई यार, तुम कहां पर हो यार? जल्दी आओ। अरे यार तुम्हारा ये मेकअप, रुक जाओ मैं, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा अनाउंसमेंट करता हूं ग्रैंड एंट्री के लिए। ठीक है, आर यू रेडी? ठीक है जी, मैं अनाउंस। सो गाइज, प्रेजेंटिंग सो एलिगेंट, so beautiful, just like a wow girl in the whole BJMC, Miss Rishita. So guys, हमारी co-host आ गई। वैसे सच में सुंदर तो लग रही है यार ये। वैसे रिशिता, Me, Nikhil's co-host Rishita Seth from the final year BAJMC. हाँ निखिल, carry on. लग तो सुंदर रही हो वैसे आज तुम, पर ऑडियंस भी कम नहीं लग रही आज हमारी। तो आप सबके लिए 2 लाइनें लिखी हैं, पढ़ना चाहता हूं मैं, समा दीजिएगा। दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आती है आप सभी के आने से। मानना पड़ेगा निखिल, पर यहाँ सब मुड़ के हमारी मेहनत और इस पे होने वाले प्रोग्राम्स के लिए आए हैं। और नहीं तो क्या, वृत्तिका किसी हमारे मेगा फेस्ट से कम है क्या गाइस? क्यों डीएमई वालों? अच्छा ये बताओ गाइस, सबकी दिवाली की शॉपिंग हो गई क्या? कैसी बात कर दी, क्यों लड़कियों इतना लेट? मैंने तो नेल एक्सटेंशंस करा भी लिए। इनफैक्ट हमारी रितिका मैम, पीयूषा मैम और शिफाली मैम के दिवाली स्टेटस भी अपडेट हो गए। तो व्हेन आर यू ऑल गेटिंग देम डन? क्यों लड़कों, तुम्हारा क्या हाल है? तुमने तैयारी कर ली क्या? और अगर कर ली है तो हमारे वृत्तिका में बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, जाओ जाके कुछ पिज्जा वीजा खाओ, बबल टी पियो। वैसे आप सबने सरोजनी का नाम तो सुना होगा ना? ओह माय गॉश, वही जगह ना जहाँ 200 की जीन्स, 100 की लिपस्टिक और 50 के झुमके मिलते हैं। हाउ टाकी। ओहो, वैसे मैंने रिश्ता से वादा किया था कि उसके साथ सरोजनी जाऊंगा, पर हम वृत्तिका की प्रिपरेशन में इतने एंगेज हो गए कि हमें समय ही नहीं मिला वहां पर जाने का।
तो रिश्ता मैंने इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, समा दीजिएगा फिर से। रातें जगा रहा हूं, क्या जाग रही हो तुम? रातें जगा रहा हूं, क्या जाग रही हो तुम? तुमको भुला रहा हूं मैं, मुझको बुला रही हो क्या तुम? वादे जो किए थे साथ सरोजनी जाने के, मैं तो नहीं गया, क्या मेरे बिन तुम जा रही हो? ओ प्लीज, मेरी वार्डरोब H&M एंड ज़ारा की कलेक्शन है, पर तू झुमके लाना मत भूलना। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए ना झुमके अभी लेके आता हूँ। हमारे वृत्तिका में एक स्टॉल लगा है, पल्स ऑफ कोरिया, मैं अभी ना उनके लिए वहीं से तुम्हारे लिए स्टॉल लेके दूँ। हमारी फिर प्यारी ऑडियंस का क्या? अरे उसके लिए ना हमारे पास स्पेशल परफॉर्मेंस है, तुम भूल गई क्या? ओ हाँ, कोरस सिंगिंग परफॉर्मेंस बाय आवर जूनियर्स, जिसको मेरे सुरीले जूनियर्स ने बहुत मेहनत करके आप सबके लिए प्रिपेयर किया है। 90s के गानों का मैशअप आप सभी के सामने पेश करने आएंगे हमारे सुरीले, मधुरमय और मनमोहक आवाज वाले परफॉर्मर्स। So guys, give a huge round of applause for them. चल अब झुमके दिला। चल झुमके दिलाता हूँ तुझे।
पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। मेरी तो खाने की प्लेट ही ठंडी हो गई। सच में यार इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी कि मेरी नजर ही नहीं हटी। सुकृति, जननी, रिया, अनुप्रिया, आप लोग मुंबई आ रहे हो, क्या आवाज है। सच में यार मजा आ गया। वैसे ऋषिता, हमने शुरुआत तो वृतिका की बप्पा से कर ली थी, पर अब बारी है उनके पप्पा की। बात तो है। क्या कहना चाहता है निखिल, अच्छे से समझा। ये आजकल की लड़कियां भी ना पू बनी पार्वती, बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती, इनको कुछ समझ में नहीं आता यार। एक्सक्यूज मी, अब समझा भी दे। अरे मेरे कहने का मतलब है हमारी अगली परफॉर्मेंस जिसमें होने वाला है भोले बाबा यानी गणपति बप्पा के पप्पा का डांस। अब समझ में आया कुछ? Of course I know, Shiv Tandav. I am offering to the divine feet of Goddess Durga and Lord Shiva. On this auspicious occasion, ladies and gentlemen, huge round of applause for this performance. नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंध्य शिरोदिनी वासिनी कृष्ण विलासिनी विष्णुनुते भगवति देशिनि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय रे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। प्रवाह भावि विस्तरे घरेवलम्ब्य पिताम्बुजङ्गमन्निनादमट्टमर्वयञ्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिवम् सम्भ्रमभ्रमन्निं पनिञ्जरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानवज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणम् स्वरूपा जटाधराय पिनकहस्ताय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। आज तो मैं पक्का इनसे एक दो स्टेप्स बैकस्टेज सीखने वाली हूँ। तो गाइस एक बार जोर तालियां बनती है कि नहीं? इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देखने के बाद तो ना मेरी बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है यार ऋषिता। हाँ तो चल कुछ खा के आते हैं सिल्वर ट्यूलिप से। अब पर टेस्टी उससे पहले खाना- ना हमारे पास इनके लिए एक मजेदार गेम है। तो मैं गेम एक्सप्लेन करती हूँ, बहुत सिंपल है। निखिल कुछ लाइंस गाएगा और आपको उसका सिंगर गेस करना है। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस मैं पहला रैप गाने जा रहा हूँ, एक लाइन गाऊंगा। अगर आप गैस कर पाते हैं तो बीच में उस रैपर का और सिंगर का नाम आप चिल्ला सकते हैं या बोल सकते हैं, और फिर हम दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? बाद में ना कहना कुछ भी, पहले ही दे तू वार्निंग। पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning, पार्टी चलेगी टिल 6 in the morning। कौन सा गाइस? करेक्ट। सेकंड। बहुत तेज है हमारी ऑडियंस। नाउ सेकंड वन इज
ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। बहुत बढ़िया गाइस। अब तीसरे रैप की बारी है गाइस। सो द थर्ड रैप इज पत्रकार जो बोले सच वही दबतार, अब भी के झूठ जनता डर रहे। इसका मैं बताऊं? अरे रुक जाओ यार, देखते हैं हमारी ऑडियंस गैस कर पाती है कि नहीं। ये लोग गैस नहीं कर पाएंगे। नहीं, ये नहीं कर पाए गैस। चलो भाई, इनका सस्पेंस खत्म करते हैं। प्रेजेंटिंग आवर नेक्स्ट परफॉर्मेंस, सो गिव अ राउंड ऑफ applause टू सीक्रेट सुपरस्टार। Hey yo, mic check, let's go. Check. शेर आ गए, शेर। Play the beat. बीट लगा भाई युगांश। सुनिए, एक पत्रकार जो सच बोलता है, कभी सत्य बोलने वाली जबान को ही काट दिया जाता है, रोक दिया जाता है। पत्रकार जो लिखे सच का पत्र, भाषा हजार पर रहे सच तो हर दम बन के, आवाज बिन खौफ होकर चलते बना के अपनी कलम, पर इस आवाज को दबा दिया जाता है कई बार, लाचार से हो जाते हैं हालात। जब फील्डिंग लगी रहती है घर के बाहर, तो कभी कभी जान आ जाती है हाथ। सिस्टम में देखते देखते रह गए कि कैसे पर्दाफाश करते ये, जनता की आवाज बन के आए और खुद ही फिर बर्दाश्त करते ये, या फेक लगे सब बस एक ही निभाए अपना फर्ज, या दिखाने को तो नेक बने सब पर एक ही बताए उनका सच। जरा सत्य को आगे तो बढ़ाने दो, अगर टूटा है ये सिस्टम दिखाने दो, है 100 झूठ पर आए बस एक आवाज, जरा इस देश की जनता को तो जगाने दो। पत्रकार जो बोले सच वही दबे लगातार, अब भी के झूठ जनता डरे कई बार, ये कलम टूट के जाती है जेल, क्या सच का मोल अब रहा नहीं सेम। पत्रकार जो बोले सच वही डरे लगातार, अब भी के झूठ जनता डरे कई बार, ये कलम टूट के जाती है जेल, क्या सच का मोल अब रहा नहीं सेम। ये मेहनती है सारे, ये मेहनत से न हारे, ये जर्नलिस्ट हमारे पूरी रात जागे, सारे फैक्ट्स के साथ हमें ये न्यूज़ है दिखा रहे, करे इतनी मेहनत झेले फिर भी हेट ये विचार, मिले थ्रेट्स इतने फिर भी ये किसी से ना डरे, निडर हो के सारा अपना काम ये करे, चाहे कोई इनके साथ इनको फर्क ना पड़े, अपनी सोच के ना बस देश की सेवा करे। सच बोलने पे नेता इनको बहुत से दबा रहे हैं, पैसा देके इनको इनका मुंह बंद करा रहे हैं, पर ये भी तो किसी की नहीं सुनने वाले हैं। सिर्फ करे काम जितने हो रहे काले हैं, काम इतने ज्यादा इनको पैसे मिलते कम, इनकी गाड़ियां है छोटी इनकी कलम में है दम, भ्रष्टाचारियों के दिल पे इनकी बातें दे जख्म, जो खरीद पाए इनको ऐसी कोई ना रकम। कितने करते सुसाइड मरते अपनी जान लेके, बातें जो कहते थे काश एक बार मान लेते, झूठी तो कहते हो मीडिया को तुम, उनका देखते स्ट्रगल शायद उनको तुम सम्मान देते। मेहनती है सारे, ये मेहनत से ना हारे, ये जर्नलिस्ट हमारे पूरी रात जागे, सारे फैक्ट्स के साथ हमें ये न्यूज़ है करे, इतनी मेहनत झेले फिर भी हेट ये बेचारे। ये मेहनती है सारे, ये मेहनत से ना हारे, ये जर्नलिस्ट हमारे पूरी रात जागे, सारे फैक्ट्स के साथ हमें ये न्यूज़ है दिखा रहे, करे इतनी मेहनत झेले फिर भी हेट ये बेचारे। लेट्स गो, अभी हमारा टाइम बचा है 5, रुक जाओ, एक और गाना अभी टाइम बचा है, एक और है। लेट्स गो, बीट लगाओ दूसरी। युगांश ब्रो बीट। क्या गैंग पासर, लेट्स गो। शॉटगन बोला कॉप वाला स्पॉट, तभी तो उड़ू जैसे बेटा कॉकपिट है, थोड़ी हाइट के सीन है शॉट इस गाने के बनेंगे, जब हॉट इन लाइट पर हाई तो हम मैं बहुत, तो यहाँ से साइड लो व्हेन आई एम ऑन इट, अब सर करे नोट, अभी तो बची है पूरी है मॉशपिट, बेटा ये 62 गैंग तो सामने से आगे तू देना बहाने नहीं, नाम नहीं पता तो इसके जेड लगा देना चीख कसामा की, पूरा क्रू है लेट तो आग लगा दे आज लोड़ी मनाने की, जब सीनो टाइट तो जीरो है फर्क है, जगह ना फालतू है ड्रामे की वो, रिडक ना तो नहीं फालतू की पीटी में रहना, जब बंदी हो ब्रेड और ऊपर उससे तो कतई ना मानूंगा किसी का कहना,
ये टेक ऑफ है ब्रो, ये रैपर से स्लो है ब्रो, I mean I know ना जाए कोई टो बाय टो, छोड़ा क्लच देन I go बीट पे बीट का मैं कर दूं कत्ल, इनके हाथ पे बंदूक मेरे हाथ पे कलम, तेरा भाई सोलो कुछ नहीं चाहिए सनम, इन रैपरों को खा के मैं कर लूं खत्म, सबको बनना है रैपर, सबको दिखना है कूल, भागे व्यूज के पीछे लगे सारे फूल, करता नहीं कभी भी मैं भाइयों पे स्टेज, क्योंकि जिंदगी का मेरे पास एक ही असूल, मेरे वतन से ज्यादा भारी है मेरी बातें, मेरे कानों के बिना भी उसी कटती नहीं रहते, लोग भी है आजकल लेकिन इतना दिखाते काम करते कम, ज्यादा जताते नकली दुनिया नकली ये लोग, इंसान बोलूं या धरती पे बोझ, पीठ पीछे उगलते जहर, मुंह के आगे बनते कुछ और है, काम वाम नहीं देखते, शक्ल अच्छी ना लगे गालियां फेंकते, बंदे को चला के अंदर से उसकी आग में हाथ ये सेकते, कलम चलाता कटाना ही लगती है, भाइयों को बातें बताना नहीं पड़ती है, बैठे कॉल के पीछे 100 लाखों की चीज खिलाना ही लगती है, ड्रॉप सारी पब्लिक खड़ी दिल्ली की सर्दी में कर दी गर्मी बढ़ी, तू एरी का पितर हम निम्बस चढ़ी, गैंग 62 से कितनों की गैंग चली हवा चली हुई खलबली, शहर में रिकी हो तू रहना, तू घर पर ही चल कभी भी, हम बेटे सिग्मा क्या करेगा हमसे सड़के भी लड़ते भी। थैंक यू गाइस, लेट्स गो थैंक यू वेरी मच। बट ये YouTube पे है गाना तो सुन लेना सारे पूरा। Wow, Pranay Joshi, Kazama and Aryan, कल के biggest rappers, and I'm sure यहाँ बैठा एक मीडिया स्टूडेंट इसकी रैप से रिलेट मानना पड़ेगा यार डीएवी के स्टूडेंट्स को, टैलेंट की कमी है इनके पास। बात तो सच है, जहाँ इतनी अच्छी फैकल्टी होगी, इतने प्यारे सोसाइटी कन्वीनर्स होंगे, वहाँ टैलेंट ना हो तो फिर कहाँ होगा। तो इसके लिए 3 cheers for DME तो बनता है। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप। निखिल, तूने इतना डांस देख लिया, अब कुछ अपने भी डांस मूव्स दिखा। मेरे अंदर भी कोई टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है हमें ना? कैसे पता? रुक जाओ अभी दिखाता हूँ, बजाओ भाई बजाओ, मेरा गाना बजाओ, खड़ी हो। इसे लेके जाओ प्लीज, कुछ सिखाओ। अच्छा हमने भी देखा है, बहुत रील बनाती है लड़कियां, मैंने वहीं से सीखा था ये, पता है? अरे प्लीज, मैं बताती हूँ तुझे असली डांस क्या होता है। अपनी डीएमई का वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है, उनका कोई जवाब नहीं है, उनकी नज़ाकत, उनकी अदाएं तुम देख लेना गाइज। हाय गर्मी गाने की तरह ना अब एमपी थिएटर की भी गर्मी बढ़ने वाली है। वेलकमिंग आवर परफॉर्मर्स, जिनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं, तो मैं जाती हूँ कुछ प्रिपेयर करके लाती हूँ, तब तक आप एंजॉय करो। कोई मिल गया, कोई मिल गया।
Fantabulously magical performance हो गया ये तो. देखा, मैंने बोला था ना गर्मी बढ़ी, इसलिए एक बार जोरदार तालियां फिर से बनती है गाइस. With this, we have came to an end to a glorious cultural evening, and we also have a melodious surprise for you all after the prize distribution ceremony. So let's begin. जिस पल का हमें बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा आ चुका है. यानी अब पता चलेगा कि वृत्तिका में होने वाले 12 कॉम्पिटिशन्स का कौन विनर है. पहला विनर, दूसरा विनर और तीसरा विनर कौन है. उससे पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहता हूँ कि आप सभी डिफरेंट कॉलेजेस से आए, हमारे डीएमई मीडिया कॉलेज में आए, हमारे वृत्तिका में आपने पार्ट लिया. हमारे वृत्तिका 2023 को इतना यादगार बनाने के लिए तहे दिल से मेरे और ऋषिता और हमारी पूरी वृत्तिका की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, सभी की मेहनत रंग लाएगी, आज नहीं तो कल. पर मेरे दोस्तों, एक बात का याद रखना कि आप सबका जज्बा और लगन काबिलियत तारीफ थी. I agree. Now I would like to call Dr. Amrish Saxena, Dean DME Media School, and Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, along with Mr. Avdesh Kumar Mishra, Anchor ABP News, and Mr. Sushil Bharti, Broadcasting Director, Marwa Studio, on the stage to do the honors, please. So guys, शुरू करें? आवाज नहीं आई, मैं ऐसे शुरू नहीं करने वाला. शुरू करें? So, first winner of RJ Hunt. Any guesses? Dipti from Technia Institute. Please come on the stage. Second prize goes to Kartike Dheer from Technia. And third prize goes to Third prize goes to Third prize for RJ Hunt goes to Khushi Chitoria from Institute of Home Economics. All the participants are requested to collect their participation certificates from the helping desk. जिसके फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस होते जा रहे हैं, बाकी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे राइट हैंड साइड में हेल्प डेस्क लगा हुआ है, वहां पर अपने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लें. नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइज फॉर फोटोग्राफी इज भूपिका सीनी फ्रॉम इग्नू. एक बार जोरदार तालियां गाइस. उधर से वो इशारे कर देते हैं. किसकी सुनूं? Second prize for photography goes to Abhishek from Niscot. Hello. And the third prize goes to Apurva Arora from Isomes. Isomes. And for digital art, the first prize goes to Ritesh Niscot. इतनी ठंडी ठंडी तालियां क्यों बज रही हैं भाई? एक बार जोरदार तालियां बजाओ. And the second prize for digital art goes to Ritesh Pandey from DME. And third prize for digital art, Sippreet Singh from DME. All the participants are requested
to collect their certificates from the help desk. जिस कंपटीशन के नाम हो चुके हैं, आरजे हंट, फोटोग्राफी एंड डिजिटल आर्ट, ये सभी लोग अपने अपने पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट हेल्प डेस्क से इकट्ठे कर लें. एंड next, so the fourth competition is sustainable art. The first prize goes to, any guesses? Asta, Harshit, Suspita, Meena, Rishika from Lowlight College, Law College. And the second prize for sustainable art goes to Parichit Sahani. And the second prize for sustainable art goes to Parichit Sahani from Kalgotia University. And the third prize goes to Amaria, Rachel, Akanksha, Anshika, Alexa, Sudiksha, Arnal, Aditya from Niscot. भैया ताली नहीं रुकनी चाहिए. वैसे आप सभी के लिए ना एक स्पेशल परफॉर्मेंस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है, तो माहौल गर्म बनाए रखो और तालियां बजाते रहो. नेक्स्ट कंपटीशन इज ओपन माइक. फर्स्ट प्राइज गोज टू, अब आपको गैस करना पड़ेगा. तुम नुक्कड़ नाटक वाले हो. और कोई? So the first prize goes to Somil Jain from India Today Media Institute. तालियां. Second prize for open mic goes to Nitesh Kumar Sahu from IMS Noida. And third prize goes to Ankit Kumar, Delhi School of Journalism. Open mic second prize goes to Nitesh Kumar Sahu from IMS Noida. I repeat, please collect your participation certificates from the helping desk. सरप्राइज बाकी है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, माहौल ठंडा नहीं होना चाहिए. हाँ, तालियां बजाते रहो गाइस. Next is media debate. The first prize goes to Sana from Jamia Millia Islamia. And second prize goes to Sachin Kumar from BIPS. Third prize for media debate goes to Dipanshu Jha from Delhi School of Journalism. Second prize for media debate, Sachin Kumar from BIPS. Third prize for media debate goes to Dipanshu Jha from Delhi School of Journalism.
Next, Meme War. The first prize goes to again Parichya Sahani from Galgotia University. Give a huge round of applause. And second prize for Meme War, Aditya Chauhan, VOD Bhopal. Third prize for Meme War goes to Vamika Kapoor from Lady Shri Ram College. And for first prize for Media Quiz, Sakshi Singh and Dakshita Oja, Galgotia University. Guys, तालियां! मैं देख रहा हूँ कौन कौन ताली बजा रहा है. Second prize for Media Quiz goes to Kriti and Charlie from Nisport. And third prize goes to Anika and Anupriya from TME. ये पर So the next one is my one of favorite competition, that is reel making, and the first prize goes to, any guesses? थोड़ा थोड़ा सही जा रहा है. Any guesses? Once again, Khushi from Institute of Home Economics. And second winner is for reel making, Second prize for reel making goes to Sia Arora from Bharati Vidyapeeth. and third prize goes to again Rohini K, Institute of Home and Economics. Third prize for reel making goes to Rohini from Institute of Home Economics. Next is Jam. The first prize goes to Dipanshu Jha from Delhi School of Journalism. And the second prize goes to Avishka Gupta from IHG. And the second prize for Jam goes to Avishka Gupta from Institute of Home Economics. All the participants are requested to please collect their participation certificate from the help desks. The third prize for Jam goes to Anupriya Dhar from DME. And the second last competition, AdMet. First prize goes to Lunawat Vivek Kumar Kartike Dheer from Technia Institute. And the second prize for AdMat goes to Shivang Mishra. And the second prize for AdMat goes to Shivang Mishra and Siddharth Chadda from Technia Institute.
third prize for ADMAT goes to Karan, Samarjeet, Eva and Dev, Rukmani Devi Institute. It's okay. You're not alone. And the last competition. Come with me into the unknown. I repeat, please everybody collect your participation certificates from the helping desk. And the last competition. नुक्कड़ नाटक. So शोर बजाना पड़ेगा guys. यही वाली बात चाहिए मुझे. So the first winner of नुक्कड़ नाटक is Team Bar from Shahid Shukdev College. एक बार जोरदार तालियां फिर से. It's okay. You're not alone. Come with me into the unknown. So for the second one. Any guesses, guys? नहीं भाई बिना गैसेस के नहीं चलेगा भाई. डीएमई. ऋषिता बता दो भाई, इनको बता दो. अब सस्पेंस खत्म करते हैं. So the second prize for Nukkad Natak goes to Team Illuminati from JSS Noida. You're not alone. Come with me into the unknown. And the second prize for Nukkad Natak goes to Team Illuminati. JSS नोएडा. ओके, टीम नहीं है. Thank you, ma'am. Thank you, sir. आगे बढ़े गाइस. नहीं आवाज तो वैसे भी नहीं आ रही. वैसे भी आप लोगों ने शोर कम मचाया है. शोर शराबा कम हुआ है, तालियां भी कम हुई हैं. तो अब लगता है मुझे ही वाइब सेट करनी पड़ेगी. ऋषिता भाई करो इनकी वाइब सेट. So special performance by Soundbound for a musical evening. एक बार जोरदार तालियां फॉर साउंडबाउंड. यार वाइब सेट नहीं कर रहे हो तुम लोग. देखो भाई, अगर चाहते हो माहौल बनना तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ. Meanwhile, I would also like to invite Bala ma'am, Shifali ma'am and Manasi ma'am to felicitate the media partners and other sponsors. Ma'am, please come on the stage. We have immense pleasure to invite V-Hit as our media partner for the felicitation. Please come on the stage. We would also like to invite Quick News. Nishpaksh Pratidin, News 44, Amar Bharti, Thank you so much. Now I would like to invite Radio Adda on the stage for the felicitation. Guys, please clap for them.
Hello, hello. All the participants are requested to please collect your certificate from help desk. Thank you so much, Radio Adda. And I would like to invite Pioneer Packaging on the stage. Also, the Pearl of Korea. Hello. Please give a round of applause for them, guys. Requested to the discipline team, please make the discipline from nearby the help desk. हेल्प डेस्क पे एक टीम का मेंबर रहेगा, बाकी लोग हट जाओ। एक टीम का मेंबर रहेगा, कोई भी, बाकी लोग हट जाइए, वो लोग कर लेंगे। यहाँ से भीड़ मत लगाइए वहां पे। बाकी सभी लोग बैठ जाइए क्योंकि इसके बाद आपके लिए एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस है आज की खूबसूरत शाम और हमारे वृतिका की खूबसूरत एंडिंग के लिए। तो प्लीज हर एक टीम का एक मेंबर सिर्फ हेल्प डेस्क पर होगा, बाकी सभी लोग प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। I would like to invite Hunt News and Dainik Khabar Live on the stage if they are present here. हेलो। हेलो। Thank you so much. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पार्टिसिपेंट्स, प्लीज हर एक टीम का एक मेंबर यहाँ पर हेल्प डेस्क पर रहे, बाकी लोग प्लीज बैठ जाइए बिकॉज कुछ ही पलों में हम स्टार्ट करने वाले हैं। Now I request Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to give the concluding remarks. Please come on the stage, ma'am. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद मुझे बोलने के लिए कुछ बचा है क्या? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसा है फेस्टिवल? अप्लॉज तो आया नहीं। रियली वेरी नाइस फेस्टिवल, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छा लगा। एंड जितनी भी परफॉर्मेंसेस थी बहुत अच्छी हैं। एंड थैंक यू टू आवर गेस्ट। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो उन्होंने मैसेजेस दिए हैं, चाहे वो अवधेश सर ने बोला या सुशील जी ने बोला, वो सारे तुम लोगों के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फॉर फ्यूचर करियर के लिए। बहुत ज़रूरी है कि जो उन्होंने बोला उसको फॉलो करो। और बहुत बड़ी स्पीच के लिए मैं नहीं आई हूँ, केवल यहाँ ये बोलने आई हूँ कि सारे लोगों ने, सारी टीम्स ने, सारी कमिटीज़ ने बहुत एफर्ट किए हैं, बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। एंड ऑल ऑफ यू जो बाहर की टीम्स आई हैं, उनके लिए, जिनका पार्टिसिपेशन है, उनको सभी को बहुत बहुत बधाई। जो विनर्स हैं, जो विनर्स नहीं हैं, लेकिन उनके एफर्ट्स, मैंने एक दो स्ट्रीट प्ले देखे थे, बहुत एनर्जी थी, बहुत अच्छा लगा देख के। मुझे पता चला एडमेट में भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था। जो जज थे उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने कहा बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था। और जिस तरह से परफॉर्मेंसेस थी बहुत अच्छी थी। आरजे में भी मैं थोड़ी देर बैठी थी, वहाँ पे भी मैंने कुछ लोगों को सुना। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि हम जो भी करें दिल से करें, अच्छी तरह करें, ऑनेस्टली करें, तभी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। एंड इम्पॉर्टेंट इज़ कि ऑनेस्ट रहना, अच्छा काम करना, अपने को
बुलंदियों तक ले जाने की कोशिश करना. So thank you to all of you. सो गाइज जो मैंने आपसे वादा किया था एक सरप्राइज के लिए, वैसे मुझे ऑडियंस दिख नहीं रही है. हेलो हेलो हेलो. वैसे मुझे ऑडियंस दिख नहीं रही है क्योंकि लाइट की वजह से, पर ऑडियंस है यहाँ पर. शोर मचाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा ऑडियंस है. हाँ भैया ऑडियंस तो है. सो अगली परफॉर्मेंस जो है म्यूजिकल परफॉर्मेंस शुरू करें. ऐसे नहीं, थोड़ा और शोर बचाना पड़ेगा गाइस. शुरू करें. तो शुरू करते हैं साउंड बाउंड की स्पेशल म्यूजिकल परफॉर्मेंस. लेट्स बिगिन. यारा यारा अपने करम की करादाए अपने करम की करादाए कर दे इधर भी तूने गाए. सुन रहा है ना तू, सुन रहा है ना, रो रहा हूँ मैं, रो रहा हूँ मैं. सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं. सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, रो रहा हूँ मैं. सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं. इतना बता दूं तुझको, चाहत में अब भी मुझको यूं तू नहीं दिया. फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बारो, तू ही है मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना. अपने तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना. शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, जो जिस्म जान एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी. तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ, तुझे भुला दिया ओ. फिर क्यों तेरी यादों ने मुझे रुला दिया ओ, मुझे रुला दिया. जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिसे मैं था ढूंढता आया, वो वजूद मिला. जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया हो. जब
तुझे याद किया। समझ जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना मैं जानू ना ओ दिल, समझ जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू। जिस राह पे है दर तेरा अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा कि मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू ना मैं जानू ना ओ दिल, संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू दिल, यही रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू।